واقع صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ملک میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آ کر اس کو ایک ایمرجنسی کے طور پہ لینا چاہیے اور کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اب کی جو مونسون کی سچویشن ہے اس سے بھی ہم باہر نکل سکیں اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی کچھ پیشگی اقدامات نہ صرف کیے جائیں بلکہ ایسا ماڈل تیار کیا جائے کہ ہم اس کے نقصانات سے بچ سکیں۔ اس پہ کریں نا آل پارٹیز کانفرنس، تمام اداروں کو درمیان میں بٹھائیں، تمام پارٹیاں ایمانداری کے ساتھ بیٹھیں اور حل تلاش کریں۔ اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، جہاں جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ کس قدر گمبھیر ہو چکی ہے، 252 لوگوں کی آج تک رپورٹ ہو گئی ہے ان کی ہلاکت کی، اور یہ ابھی وہ ہیں جو رپورٹڈ ہیں، بہت مسنگ ہیں، مسنگ ہیں، وہ جو ان رپورٹ، یہ وہ ہیں جن کی لاشیں مل چکی ہیں، اللہ معاف کرے۔ ابھی کتنے لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا، جو مسنگ ہیں، جن کی گاڑیاں چلی گئی، گھر چلے گئے، بچے بھی۔ اچھا، ادھر کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے، ادھر سیاست چمک رہی ہے، ادھر بل پاس ہو رہے ہیں، چونکہ سکون سے بڑے لوگ، بڑے بڑے پولیٹیشین، بڑے بڑے اعلیٰ افسران، بیوروکریسی، مزے سے بڑی گاڑیاں۔ میں کسی کے لیے کوئی برا تو نہیں سوچتا، اللہ نہ کرے، آپ مجھے بتائیں نا کون سا کوئی ایک کسی بڑے بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوتا نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں کوہرام مچ جاتا۔ یہ عام عوام ہے نا جن کو یہ لوگ بھیڑ بکریاں سمجھ کے یہ ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ ہمیں ڈیل کرتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ بس جی 252 لوگ، کیا 252 لوگوں کا دنیا سے چلے جانا کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ سب کچھ ہماری اپنی نااہلیت، ٹھیک ہے، اچانک کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، بھائی ہمیں پتا تو تھا کہ یہ ہر سال ہوتا ہے، یہی نالے جو ہیں ان میں طغیانی آتی ہے، کتنے گھر اور بہہ جاتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں ایسا سخت ایکشن کیا کہ جہاں جہاں ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ پانی اپنا راستہ لے کر لوگوں کو برباد نہ کرے؟ وہ تو ہم نے کیا نہیں، باقی کام ہم سارے کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں سیاست کا پتہ ہے، ہمیں اپنے پیسے لینے کا پتہ ہے، ہمیں گاڑیوں کا پتہ ہے، ہمیں پیٹرول کا پتہ ہے، ہمیں اپنے پرکس کا پتہ ہے، ہمیں اپنے مزے لینے کا پتہ ہے، حکومت کرنے کا بھی پتہ ہے، لیکن اصل کام جو حکومت کا ہے، عوام کا تحفظ، ان کی جان کا تحفظ، ان کی مال کا تحفظ، وہ تو کسی کو۔ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس پہ آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں بلائی جاتی۔ بریگیڈیئر صاحب، موسمیاتی تبدیلی کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے، اس کو ایک المیہ کے طور پہ نہیں لیا جاتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تباہی اس وقت پورے ملک میں نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے اداروں کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ ادارے جو کہ صرف انفارچونیٹلی برائے نام ہے، بڑی بڑی تنخواہیں وہاں پہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں، بڑی بڑی عوام وہاں پہ موجود ہے لیکن ہو کچھ نہیں رہا، اور دوسرا حکومت کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اب کی بار بھی بڑی بڑی سی رپورٹس بنائی جا رہی ہیں، سرویز کیے جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح صفر ہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ عوام ہماری جو ہے وہ ووٹ ڈال کے اپنے علاقے کے نمائندے کی چنتی ہے، پھر وہ جا کے اپنے علاقے کے صوبائی حکومتیں کیوں بناتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کیوں بنتی ہے کہ وہ ان کے لیے کام کریں گی، ان کی ہیلتھ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، ویلفیئر کے لیے، تعلیم کے لیے، جو بھی ہے سوشو اکنامک انوائرمنٹ کے لیے، ویدر کی ہر چیز کے لیے وہ کام کرے۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا کسی کے کوئی پرابلم ہوئی ہے؟ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کیوں ویدر فور کاسٹ نے نہیں بتایا کہ ایک ہفتے میں بہت حالات خراب ہوں گے؟ جو جہاں پر فیملیز ہیں دے شوڈ اسٹک دیئر، ان کو الاؤ نہیں کرنے دینا چاہیے تھا کہ یہ موو کرتے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس طرح کے ویدر میں آپ پھنس جاتے۔ somebody has to be held responsible۔ پرابلم یہ ہے کہ مری میں آپ کو یاد ہے ایک دوسرے پہلے کیا ہوا تھا، کتنا بڑا سانیہ ہوا تھا، واٹ ہیپنڈ، جی انکوائری ہوئی، ختم ہو گئی۔ ایک پوری فیملی جو آئی ہوئی تھی لودھرا سے میرے خیال میں، جو ایک ڈاکٹر، پوری ہاسپٹل، ویری گڈ فیملی، ساری کوسٹل میں چلی گئی، فیملی چلی گئی، دے ور سو بڑے شوق سے اپنے ملک میں آئے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ میسج جو دنیا میں جاتا ہے، ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان از اے ٹورزم ہیون، آپ یہاں پر آئیں، گلگت بلتستان میں آئیں، بلوچستان میں آئیں، سون سو پلیس، ہو ول کم، جب یہ خبریں جا رہی ہیں تو آئی تھنک ہم اپنے بہت ظالم اپنے ملک کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، آنیسٹلی میں اوپر۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک ہفتے کے لیے سب کو وارن کر دیتے، ویدر ہیزٹ ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، وی کین سی، ایون اگر 50% چانس تھا تو آپ کو فیملیز کہتے فار یور سیفٹی، فار دا سیفٹی آف یور چلڈرن اینڈ یور فیملی،
प्लीज रिमेन वेयरएवर यू आर, डोंट मूव ऑन द रोड। ये किसने बताना था? कोई रास्ते में चेक था? किसी ने रास्ते में आपकी पुलिस, आपके रजाकार, आपकी एफसी कहाँ थी? नोबडी वाज देयर। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी ओनस है, इसको गवर्नमेंट को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी करें और नेक्स्ट टाइम इट शुड नेवर हैपन। It is unfair, unbelievable. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जवाब साहब, पेश के इकदाम तो दूर की बात है, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने हैं कि अभी जो एक डिज़ास्टर किसी सिचुएशन है और हम एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अभी भी हमें जो किरदार नज़र आना चाहिए इदारों का, वो किरदार नज़र नहीं आ रहा। अभी भी हुकूमत का जो किरदार हमें नज़र आना चाहिए वो नहीं आ रहा। अभी भी एक छोटी सी बात है कि आप जो टूरिस्ट हैं, आप उनकी सेफ्टी भी यकीनी नहीं बना सकते। देखिए, दो तीन चीजें इसमें हैं। ब्रिगेडियर साहब ने ठीक कहा कि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और उसको निभाना पड़ेगा। वरना तो हम अपने आंखों के सामने और हाथों से फिसलते हुए देखेंगे, जैसे पत्थर फिसल रहे थे कि इंसानी जानें भी फिसलती चली जाएंगी और हमसे दूर होती चली जाएंगी। हमने देखी एक और भी चीज देखिए, इसमें एक चीज और भी देखिए। अभी ये 10 साल पहले पाकिस्तान में ये सोच आई नवाज शरीफ की हुकूमत में कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी काम होना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ब्रिगेडियर साहब आवाज इन कनाडा और मस्कोका के अंदर G8 और G20 कॉन्फ्रेंस हुई तकरीबन 2010 में शायद, तो वहां पे सबसे बड़ा जो कनाडा की तारीख का बड़ा मुजाहरा हुआ और उसमें गिरफ्तारियां सबसे ज्यादा हुई तो टोरंटो के अंदर हुई कि वो लोग ये इन कुव्वतों से, इन आलमी शख्सियात से ये मुतालबा कर रहे थे कि माहौलियात को तबाह करने में जो तुम्हारी पॉलिसीज है, जो इंडस्ट्री है और उसके जो ये जराइम जो कर रहे हो, पहले इसको रोको। उसकी वजह के कनाडा के ऊपर ओजोन उस पर पैचिंग हुई है और वहां पे कैंसर, स्किन कैंसर की एक बहुत बड़ी वो वजह है वो सारा कुछ। लिहाजा वो लोग आए, तब मैंने सोचा कि यार कौन लोग ने मौसमियाती तब्दीली होती क्या है, लेकिन फिर ये पता चला कि पाकिस्तान तो उसका सबसे बड़ा मुतासिर बन रहा है। और फिर हमने 2022 में मैंने खुद सवाब से चल के और सखर के पहुंच के दरियाए सिंध के किनारे किनारे जो मैंने वो कुछ देखा हुआ है ना, वो दैट वाज रियली ट्रॉमा कि मुझे अभी भी जब मैं देखता हूँ कोई ऐसी फुटेज तो मुझे वो सारे सीन याद आने लग जाते हैं। लिहाजा इसमें एक तो हुकूमती इंतजामी जिम्मेदारियां अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ब्रिगेडियर साहब के माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिलीज हो, उन्हें भी मौसमियाती तगयरों तक बदल का पता हो, उन्हें भी ये इल्म हो कि खास तौर पे ये जो अय्याम है, ये जो महीने हैं बरसात के, इसमें सफर करना जो है वो खतरों से कम नहीं है और वो जान जोखों में डालने वाली बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पे डाल देना, और कोई भी हो, सुवाई हो या वफाकी हो। जवाब साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस प्रोग्राम से पहले जब हमने जिक्र किया था एक जुमला मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि इसमें ये देखिए कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, ये मार्गला की पहाड़ियों से जो बरसाती नाले हैं वो किसी पीर साहब ने ब्लॉक किए हुए हैं, कहीं पे कोई सोसाइटी बन गई है बिला तखसीस व तफरीक। वो तमाम जो तजावुजात हैं नाजायज जो है उनको खत्म करना चाहिए और उसमें मस्जिद आ जाए, तब भी उसमें कोई बड़ा घर आ जाए, छोटा घर आ जाए, जितनी मर्जी अहम शख्सियात क्यों ना हो, मैं समझता हूँ कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि पानी, आग और हवा ये किसी को नहीं छोड़ते और हमें इनके दरमियान नहीं आना लेते हैं, चाहे आपने बीच में कोई भी रुकावट क्यों ना कायल की हो। वागा साहब, अब टाइम हमारे पास शॉर्ट है इस सेगमेंट के लिए। मुख्तसरन ये बताइएगा कि चलें ठीक है, इस बार भी मॉनसून आ गया, गुजरने वाला है, गुजर जाएगा, जो डिजास्टर हुआ, जो कैजुअलिटीज हुई वो तो हो गई। पेश की इक़दामात अगले आने वाले सीजन के लिए हमें क्या करने होंगे, कौन से मेजर हैं जो हमें लेने की ज़रूरत है, और अगर हम ये नहीं लेंगे तो मज़ीद कितनी तबाही हम देखेंगे? पहले तो हुकूमत फौरी तौर पर जो इतना बड़ा इदारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नाम देखें कितना बड़ा है और काम देखें जीरो, पहले तो उनको बुलाएं, उनका एहतसाब करें कि आपने क्या किया और उनसे पूछें कि आपकी प्लानिंग क्या है। अगर इस तरह के हालात बन जाएं तो आप ये बताएं कि कौम को, मुल्क को, उस शहर को, उन लोगों को जो फंस जाते हैं उनको हमने कैसे बचाएं। आपको याद होगा सारी दुनिया ने एक फुटेज देखी थी कि कुछ लोग पानी के अंदर एक टीले के ऊपर थे और थोड़ी ही देर बाद वो पूरे का पूरा खानदान बह चुका था। उससे बड़ी दुख बड़ी वीडियो
मैं ने जिंदगी में नहीं देखी। और आप ये देखिए किसी ने कुछ नहीं किया। वेयर वाज डीएमए, वेयर वाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वेयर वाज फेडरल गवर्नमेंट। आप चंद लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, हरगिज नहीं, सब लोगों की जिम्मेदारी है। वहां अवाम की भी जिम्मेदारी थी कि वो उनको बचाते, लेकिन किसी ने कुछ ना किया। फौरी तौर पर हुकूमत को मय्यज लेने चाहिए और आने वाले वक्त की आज प्लानिंग करें, देख लें कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए था, ताकि अगले साल कम से कम इस तरह का ये काम ना हो। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा आपके में क्या मेजर्स जो हैं वो लेने की ज़रूरत है और मौसमियाती तब्दीली को कितना ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देनी है? देखें, इसको मॉडर्न इक्विपमेंट दें। दे मस्ट सी कि आपके एक महीने में ये क्या वेदर फोरकास्ट है, क्या हालात होने वाले हैं, एंड अपडेट द टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। उनको बताएं कि जी ये मौसम है, इसके लिए आप सोच समझ के आएँ, ये जगह सेफ है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा नहीं है, यहाँ पर ये जो है नाला नहीं बढ़ जाएगा अचानक, तो आप ये जगह सेफ है, जहाँ पर आप चले जाएं इस फौजर के दौरान। लेकिन जब वेदर ठीक हो जाएगा देन यू कैन गो, और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रोका जाए। वहाँ पर तैनात होने चाहिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, इनकी फोर्स उनको गाइड करे, और जो नेशनल NDMA और PDMA प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दे मस्ट प्ले देयर पार्ट। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करें। कोई वहाँ नजर नहीं है कि हुकूमत की मशीनरी कहाँ पर है, कैसे ये गाड़ियाँ रिकवर करनी है, कैसे लोगों को निकालना है। आपने क्यों नहीं देखा कि सर्वे करें टीमें इनकी जाके, जी कौन कौन सी जगह से लैंडस्लाइड हो सकती हैं, कहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं जो बारिश पे नीचे आ सकते हैं, उनको पहले से या तो गिराएं। सी के व्हाट आर द लूज चीजें पड़ी हुई उनको ठीक करें। बहुत जिम्मेदारी है। it is the only thing is we must have a will to do, that's more important। और एक आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी गलती से कितनी जान जा सकती है, कितनी फैमिली उजड़ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं तो कोई काम नहीं हो सकता। जवाद साहब, क्या इकदाम हुकूमत को उठाने की ज़रूरत है? इदारे क्या कर रहे हैं? इदारों का क्या रोल आप देख रहे हैं कि होना चाहिए? देखिए, इस हवाले से तो दोनों दोस्तों ने पहले ये बयान कर दिया। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी हम ना अवेयरनेस की बात भी करें, लोगों को भी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में जब जाता हूँ ना, इस्लामाबाद हो या ऊपर हो, पहाड़ी इलाके, गंद फेंकने में हम बड़े माहिर हैं, हम उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते, बंदिश उसकी वजह से होती है। फिर ड्राइवर, एक बंदा कराची से चलता है, ना वहाँ बर्फ कभी पड़ी है, ना वहाँ कोई ऐसे पहाड़ों से वो गुजरा है। मैं ये नहीं कहता वो ड्राइव ना करें, लेकिन देखिए मोटरवे पे गाड़ी चलाना और है, बर्फ के अंदर एक ब्रेक लगाने से मतलब ये है कि सैकड़ों गाड़ियों को आप जो है वो तबाही के दाने पे ला खड़ा करते हैं। अगर आपको नहीं बाइक्स चलानी आती, नहीं आपको मोटर कार चलानी आती, ड्राइविंग सही नहीं आती, तो और इसके साथ साथ देखिए अल्लाह ने भी हम पे ये फर्ज किया कि अपनी जान को बचाना हर एक का फर्ज है। सैर इतनी बड़ी फर्ज नहीं है जितनी जान बचाना फर्ज है। लिहाजा हमें भी ये चाहिए। और मिंबर महराब से अब जब जैसे सवात जैसे इलाकों में जिस किस्म के मामलात मदारस तक के आ रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि एक दफा बहसियत मजमुई हमें अपने अमाल पे भी सोचना चाहिए, अपनी हरकत पे भी सोचना चाहिए। और मैंने जैसे पहले कहा, आखिरी मिसाल देता हूँ, E11 इस्लामाबाद में कुछ साल पहले भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसमें जो तबाही मची, मैं उसमें बिल्कुल कॉर्नर पे रहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहां से मुझे गोरडा शरीफ के मीनार भी नजर आते हैं, लेकिन हैरान में हूँ जो सवाबे दारान हासिल करने आते हैं उसी नाले में गंद भी अन्नेवाह फेंक रहे हैं। इन्हें सबसे पहले ऐसी जगहों से, खानकाहों से, मसाजिद से पहले सफाई का वो कहना चाहिए। मैं अब देख रहा हूँ, मैं ठीक है सर, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, यानी हमें एज एन इंडिविजुअल अपना रोल भी प्ले करना है, अपने मुल्क की खातिर अपनी जानों की हिफाजत करनी है। हुकूमत तो अपना काम करे, जो इदारे बनाए हुए हैं NDMA, PDMA और इस तरह के दीगर इदारे, उनको भी अपना जो किरदार है वो अदा करना होगा, लेकिन हमें इनफरादी तौर पर भी अपना रोल प्ले करना है।